So in our last lecture, we have started studying about the new term which was being called to be as the dual of a compound statement. So while studying with the term dual, we have learned that okay, the meaning of the term dual means it is the dual means it is the double of a compound statement. If a statement, if it is been comprising of if it is been comprising of not, or, and, so in that case the dual of the statement, the dual of a statement, it can be obtained, it can be obtained by replacing. चलो बच्चा लोग मुझे बताओ, ड्वेल जो है ड्वेल वो हमें कैसे मिलेगा? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द ड्वेल? वी हैव टू रिप्लेस every or with, and every and is replaced with or. बराबर है? अच्छा, if the statement, if it is comprising of the letters like T and C, तो the dual of the statement, it can be obtained by replacing every T with C or by replacing every C with T. अच्छा बच्चा लोग मुझे बताओ कि इन dual, व्हाट अबाउट निगेशन? निगेशन का हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग? करेक्ट, एट निगेशन इट रिमेन्स वन और द सेम। निगेशन के साथ कोई मस्ती करने का नहीं हो, बराबर है? अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, तो बच्चे हम लोग ने निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था बड़ो? कि while finding the negation of a compound statement, while finding the negation of a compound statement, we have learned that every letter, it has been replaced by using its negation. Every letter, it has been replaced by using its negation. Every or, it has been replaced by and. Every and, it has been replaced by or. बराबर है? And after that, we have started studying about the rules, the rules of negation. The rules of negation. We have studied for the rule for or an and the rule for if then. And now the lecture begins by writing that rule for rule for if and only if rule for if and only if oh, that means if P and Q are the two letters, P and Q are the two letters, and you have to find the rule for ये P, if and only if Q, P, if and only if Q. चल भाई फटाफट मुझे आंसर दे बेटा, P if and only if Q. बेटा by knowing that
P if and only if Q। बोल क्या तुम लोग सम बेटा डायरेक्टली सॉल्व करेगा? फटाफट फटाफट रिप्लाई करो, क्या ये सम डायरेक्टली बेटा सॉल्व करेगा तुम लोग? अच्छा, तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा मुझे बताओ? यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम क्रिएटर बेटा इनटू इट सिंपल फॉर्म, बराबर है? सिंस P if and only if Q, P बेटा if and only if Q। बताओ व्हाट इज द सिंपल फॉर्म अकॉर्डिंग टू द बाई कंडीशनल लॉ? बताओ P if and only if Q which is equivalent to negation of P or Q and negation of Q और P, बराबर है? वेरी गुड दृष्टि। चलो अब यहाँ पे इनकेस अगर किसी को बड़ा डाउट आए कि ये कैसे आया, तो वहां पे वो स्टूडेंट बेटा वहां पे रीजन लिख सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ द बाई कंडीशनल लॉ, बराबर है? चलो लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्विवेलेंट टू इट्स राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब बड़ा अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड का निगेशन फाइंड करना है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड का निगेशन, बराबर है? अप्लाइंग द निगेशन ऑन बोथ द साइड्स, negation of P if and only if Q negation of P if and only if Q which is equivalent to which is equivalent to negation of negation of P or Q and negation of Q और P। लेफ्ट हैंड साइड का बड़ा निगेशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो बड़ा राइट हैंड साइड का निगेशन फाइंड करना पॉसिबल है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चा वही अपना राइट हैंड साइड है। बोल मानता है कि नहीं? बराबर। चलो replace every letter by using its negation, this will become ये negation of negation P, बच्चा और will be replaced by and Q will be replaced by negation of Q, बराबर? and जो है बड़ा and it will be replaced by और, फिर उसके बाद ये this will become negation of Q, और का this will become and P का this will become negation of P, बराबर? अब भाई मेरा तो आंसर रेडी है बच्चा, रेडी है। बोल मेरा तो आंसर रेडी है।
तुम लोग का आंसर रेडी है क्या बेटा? एक 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 द होल निगेशन ऑफ एक P if and only if Q एक P if and only if Q एक which is equivalent to चल स्टार्ट बच्चा लोग ये देख फटाफट फटाफट आंसर आएगा निगेशन ऑफ निगेशन P it is P and negation of Q negation of negation P the answer is equivalent to P ये बात हम लोग को कहां से पता चली by using बड़ा which law involution law बराबर है negation of negation Q the answer is Q चलो देख ले रेडी है बोल सब लोग को समझ में आ गया बेटा ये मैं चाहता तो ये डायरेक्टली बेटा डायरेक्टली ये लॉ मींस यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख के तो मैं बता सकता था विदाउट गिविंग एनी सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन बेटा बट तुम लोग को ये समझ में आ कि सर ये आंसर आपको आया तो आया कहां से चलो निखिल इज देयर इन द क्लास निखिल Nikhil is there in the class? Nikhil. Vidya, you were absent in my last lecture. Vidya. बड़ा वाईफाई डाउन था तो उसको वाईफाई को बड़ा कर दो डोंट गिव मी सच टाइप ऑफ बड़ा रीजंस एक्सरसाइज नंबर 1.8 टेक्स्ट बुक अगर है तो पेज नंबर बड़ा 21 पे देखो वहां पे एक्सरसाइज नंबर 1.8 मेन क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ पढ़ाई द के लिए फॉलोइंग मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी राइट का द साथ। निगेशन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज नंबर 1.8 का क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 3 एक्सरसाइज वन पॉइंट एट मेन क्वेश्चन नंबर 2
number 3. Using the rules of negation, write the negations of the following. सबसे पहले बड़ा we are starting with sum number 3. We are starting with sum number 3. Write down. Write down. The given statement pattern is negation of P and Q and negation of Q or negation of R. चलो बच्चा लोग रेडी हो सब लोग. क्वेश्चन नंबर 2 का सब नंबर 3. नेक्स्ट लाइन. therefore the negation of the given statement. Therefore the negation of the given statement. एक negation बोला बड़ा. क्या बोला? negation. एक negation of the given statement. negation of negation of P and Q and negation of Q or negation of R. ब्रैकेट क्लोज. बराबर. बच्चा लोग क्या किया पता चला? मैंने यहाँ पे निगेशन क्यों अप्लाई किया? टेल मी व्हाई आई हैव द निगेशन ओवर हियर. Because I want to find the negation of the given statement pattern. Follow the rules. Ready? Every letter it will be replaced by using the negation. So this will result as a negation of P बराबर. And it will be replaced by or Q जो है बड़ा. This will become as negation of Q. So bracket close. And जो है बड़ा. And will be replaced by or. And then this will result as a negation of Q or का and negation of R. Bracket close. चलो रेडी स्टार्ट. चलो बच्चा लोग फटाफट बेटा मुझे आंसर दो. negation of negation P, it will become this will become बड़ा P बराबर. और का और negation of Q. ये था फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर. और का और. बच्चा लोग मुझे ये बताओ व्हाट इज negation of negation Q. रॉन्ग है प्रियंका. योर आंसर इज रॉन्ग प्रियंका. it will be Q. it is and. प्रियंका एंड आएगा बेटा. तूने वहां पे बाय मिस्टेकली बेटा और लिख दिया. चेक कर.
बेटा चेक करो सब लोग को ये आंसर आया था। बेटा वो हर बार हर एक स्टेप में चेंज नहीं होता है प्रियंका, इट चेंजेस बेटा ओनली वंस। चलो ठीक है, आगे। चलो बेटा राइट ऑन। द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, P implies R, is P implies R and Q. चलो P implies R and Q, P implies R and Q, बराबर है? बड़ा क्या लगता है, क्या ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सम जो है, क्या तुम लोग उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे? अच्छा क्यों नहीं कर पाओगे? हु इज द प्रॉब्लम क्रिएटर? करेक्ट, इफ देन, बराबर है। तो जब तक बड़ा सब में इफ देन रहेगा ये हमारे सर को सॉल्व नहीं करने देगा। तो अब याद करो बड़ा, जिस किसी भले इंसान ने तुम लोग को बड़ा लॉजिक चैप्टर पढ़ाया है उसने तुम लोग को बताया है कि तुम लोग उसको कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंस ये P implies P implies R and Q, it is equivalent to, बराबर, P implies R का सिंपल फॉर्म नेगेशन ऑफ P, बराबर। अब यहाँ पे क्यों नहीं है बच्चा लोग मेरे पास, क्यों के बदले कौन है बच्चा लोग मेरे पास बेटा P। हाँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ P और R एंड Q, बराबर है। इट इज ऑल एग्जैक्टली बेटा वन और द सेम, दैट इज बाय यूजिंग, that is by using irregular, by using contrapositive law। अब देख यहाँ पे बाय, ये देख लेफ्ट हैंड साइड का बड़ा निगेशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं था, बट बच्चा लोग राइट हैंड साइड का तो निगेशन फाइंड करना पॉसिबल है। टेल मी यस और नो। यस, तो लिखो बड़ा नेक्स्ट लाइन, therefore the negation of the given statement pattern is, therefore the negation of the given statement pattern is, अब ये देखो यहाँ पे the negation of negation of P implies R and Q
विच इज इक्विवेलेंट टू 8। बड़ा लेफ्ट हैंड साइड में निगेशन दिया तो मुझे राइट हैंड साइड में भी देना पड़ेगा निगेशन। निगेशन ऑफ 8। negation of P or R and Q। अब देख कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, फटाफट फटाफट सम सॉल्व हो जाएगा। We have to replace every letter बेटा by using its negation। ये हो जाएगा negation of negation P। और का हो जाएगा बेटा एंड। R का हो जाएगा negation of R। एंड जो है बेटा एंड का हो जाएगा और Q का हो जाएगा बेटा negation of Q। चलो यहां तक सब लोग बच्चे लोग मानते हो? यस और नो? यस। तो अब देख तुम्हारा तो आंसर बच्चा लोग रेडी है। therefore the negation of the negation of P implies R and Q। P implies R and Q, which is equivalent to negation of negation P, it is P, and negation of R, P and negation of R or negation of Q। P and negation of R or negation Q। प्रेम योर आंसर इज रॉन्ग बड़ा प्रेम। एंड नहीं आएगा बच्चा, एंड के बदले कौन आएगा वहां पे? मेक अ करेक्शन। चलो नेक्स्ट। नंबर 2। Number 2, write down the given statement pattern is the given statement pattern is the given statement pattern is negation of P or Q, negation of P or Q implies R, implies R। अच्छा बच्चा लोग सब लोग जरा ध्यान से चेक करो और मुझे ये बताओ कि ये गिवन स्टेटमेंट जो तुम्हें दिख रहा है बड़ा, ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है?